के बाद में अभी लेटेस्ट जो केस चल रहा है उत्तराखंड में, भंडारी का केस चल रहा है, अंकिता भंडारी मर्डर केस। एक डायलॉग याद आता है, एक जो सनी देओल का दामिनी मूवी, तारीख पे तारीख पे तारीख, राइट राइट। तो एक नॉर्मल फ्रस्ट्रेशन होता है कि जस्ट ये कहीं ना कहीं पे ना एक दूसरे पे ही ये है, मतलब एक दूसरे पे ही वो कनेक्टेड डॉट्स है। दे कैरीज इमोशनल मतलब वेट। हाँ, आप कैसे उसके साथ बैलेंस करते हो माइंड का, मेंटल रेजिलियंस आप हैंडल करते करते केसेस आपके ऊपर भी मतलब आप एक जगह बोल रहे हो कि उसको सजा होना चाहिए, बट आप एक जगह उसे डिफेंस भी कर रहे हो, तो ये लॉ है सर। Hi all, this is Sudhir. My channel name is Stories by Sudhir. So today my podcast guest is Advocate Pooja Dongre. So she is a practicing advocate at the Bombay High Court with benches at Mumbai, Aurangabad, Nagpur, and she appears before the Supreme Court of India as well. She specializes in criminal law, handling bail matters, trials, appeals, writs, PILs, and special leave petitions with strategic and client-focused advocacy. Her education includes a BSc in Computer Science, an LLB, and an LLM in Constitutional Law. She has appeared in high-profile cases such as Bhima Koregaon case, Badlapur fake encounter case, and the Sakinaka minor rape cases. Beyond litigation, she serves as a legal advisor to corporate firms and has received a national as well as international awards for the legal and social contributions. Welcome, Pooja. Thank you so much. Yeah. So we'll start the podcast. Yes. So this is your first podcast, right? Yes. So have you reviewed our podcast episodes? Good, like when I got invitation from your team, so it was a very good opportunity for me. And when I saw your profile on social media, so you people are doing very good, and I am really thankful that you people are invited me here to give my message to the society, and as well as being as a first generation lawyer, it was a very best opportunity to me, I guess. So I find it that way. I find it through your podcast. Okay, thank you. So what's your message basically to the podcast viewers and the community as a whole also? Well, my message is related to social media is that uh, everything plays a different role in your life. Right. If you see nowadays, social media is a good and social media is bad also. Yeah. But if you use in a good way, so you will get a good things only. But if you use in a bad way, like if you use just to view the reels, Yeah. just to use the Facebook, just to scroll the profiles, and also you will waste your time. Right. But if you use in a correct way, so you will build your business, you will build your clients, you will build your profile. Like I came because of the social media only, I can say that. Yes. Definitely, yeah. So your journey began as BSc in Computer Science. Yes. And then you led to Constitutional and Criminal Law, right? So how these things happened? It's very contradictory. That's a very strange thing in my life, like I can say that, because when I completed my 12th in science background, कौन से कॉलेज में? I completed from Kalyani SH Mutha College. Okay. So that time IT का एक fad था in 2013-14. So when I completed my 12th. But पहले से I was connected to NSS, I was connected to NCC, and I was connected to through local NGOs there where I used to stay. So that time वो मेरे अंदर एक वैल्यूज पहले से ही था कि लाइक मतलब कुछ ऐसा एक प्रोफाइल करे या फिर कुछ ऐसा स्टडी करे कि जिसके वजह से लाइक मतलब काम में मजा आए. Right. हाँ, बिकॉज आई एम द पर्सन हु फाइंड्स एंजॉयमेंट इन माई वर्क. Oh. हाँ, सो मुझे पहले से वो 9 to 6 में नहीं जाना था, तो वो मैंने तभी फिट कर लिया था. बट दैट टाइम आई अप्लाइड फॉर द मेडिकल, वो नहीं हुआ. देन आई कन्विंस माई फैमिली कि मुझे BSW में जाना है, बैचलर ऑफ सोशल वर्किंग. तो घर वालों ने बोला कि उसमें जाके क्या करोगे, मतलब उसमें जाके क्या मिलेगा, आप सोशल वर्क में थोड़ी ना काम कर पाओगे. तो वो एक माइंड में रहा उस वक्त. Right. और उस वक्त IT इंजीनियरिंग MBA. तो मॉम सेज कि चलो ठीक है, अभी आप कंप्यूटर साइंस कर लो BSc.
फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस कर लिया, बट वो एन्जॉयमेंट नहीं आ रहा था उस वक़्त। देन आई स्विच इट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस टू लॉ। तो आई मतलब सडन कैसे स्विच किए लॉ में? कुछ अ, बिहाइंड द स्क्रीन क्या हुआ? बिहाइंड द स्क्रीन ऐसा हुआ कि आई वाज़ कनेक्टेड विद वन एनजीओ, आई वेंट टू औरंगाबाद। तो वहाँ पे मेरे एक प्रोफ़ेसर थे कॉलेज के, वहाँ के देवगिरी कॉलेज के एक प्रोफ़ेसर थे। अच्छा। तो एक्चुअली आई एम वेरी ग्लैड जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिम। उन्होंने जो मुझे इंस्पायर किया, उन्होंने जो मुझे मैसेज दिया कि आपकी प्रोफ़ाइल एक लॉयर और आपकी प्रोफ़ाइल एक लॉ के लिए बेस्ट है। ओके। तो फिर मैं चल पड़ी, फिर मैंने अ, एग्ज़ाम्स दिए, फिर मैं आई वेंट टू औरंगाबाद, आई कंप्लीटेड माय एलएलबी, एलएलएम फ्रॉम एमपी लॉ कॉलेज औरंगाबाद, विच इज़ नोन एज़ छत्रपति संभाजी नगर नाउ। तो फिर वो वहाँ से मेरा मास्टर्स हुआ, देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट प्रिंसिपल बेंच एट मुंबई। ओके। येस। कब से शुरू किए प्रैक्टिस? Sir, I took admission in 2019. Okay. I completed my LLB in 2022, and I started practicing in since 2022. I completed 3.5 years, I guess. तो अभी 4th year शुरू है मेरे practice का. Okay, great. Yes, yes, So you are practicing across this Bombay High Court and yes. Supreme Courts and multiple places. Multiple places. How do you balance these timings? It's very difficult, right? Yes, actually it's a very not a very but very very difficult actually. मतलब लाइक दोनों टाइम मैनेज करना और उससे ज़्यादा तो क्लाइंट्स को मैनेज करना, उससे ज़्यादा मेरे एसोसिएट्स को, मेरे जूनियर्स को मैनेज करना, इट्स अ वेरी बिग टास्क फॉर मी। क्योंकि कोर्ट में केसेस को लीड करना ये आपका एक अनदर असाइनमेंट है। राइट, ट्रैक और करना पड़ेगा ट्रैक पूरा करना पड़ेगा, डेली वाइज आज के हियरिंग में क्या हुआ अपडेट्स। बट आपके जूनियर्स को, आपकी टीम को ट्रैक करना, उनके पीछे फॉलोअप करके लेना, ये बड़ा टास्क है मेरे लिए। तो वो बैलेंस हो जाता है अल्टीमेटली इफ यू बिल्ड अ गुड कनेक्शंस। आई हैव एसोसिएट्स इन दिल्ली, इन बेंगलुरु, इन अहमदाबाद, गुजरात, सूरत। सो बेसिकली अगर वहाँ पे कभी ज़रूरत पड़ती तो जैसे मैं जाती हूँ, जैसे कोई फाइनल हेयरिंग का मैटर है, जैसे कोई हेयरिंग का मैटर है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन है, चीफ एग्जामिनेशन है, तो उस टाइम पे आई यूज टू ट्रैवल। अदरवाइज माई एसोसिएट्स आर देयर, दे हैंडल माई केसेस। यस। तो आप खुद ही लॉ फर्म का ओनर है और पार्टनर वर्किंग विद? I am the only owner, and I have a tie-ups in Delhi. दिल्ली में मेरा प्रताप एंड कंपनी के साथ में टाई कोलैबोरेशन है। सो दे आर हैविंग अ एक्सपर्टाइज इन क्रिमिनल लॉ, फिर कॉरपोरेट, और अहमदाबाद में ऐसे अलग-अलग जो मेरे ट्रस्टवर्थी लोग हैं उनके साथ में मेरा टाई-अप है बेसिकली। ओके। यस। सो थ्रू सोशल मीडिया यू गॉट टू नो अबाउट दैट? कैसे आपका जानकारी कैसे? Through social media, I cannot say that, but Okay. networking, networking. I believe in networking. Networking is the most powerful thing in 2024. मतलब या राइट। अभी के जनरेशन में अगर किसी को नेटवर्किंग का मीनिंग समझ में आया तो वो मेरे जैसे ही ग्रो कर सकते हैं अल्टीमेटली। थोड़ा सा बताएं, क्या रीट पिटीशन होता है, रीट होता है हाँ। और पीआईएल होता है और एक स्पेशल लीव पिटीशन हम्म। क्या है, मतलब थोड़ा सा। सर देखिए, आप जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राइट। आप अगर पावर वाइज बात करेंगे तो हाई कोर्ट इज हैविंग मोर पावर देन सुप्रीम कोर्ट। ओके। हाँ, जैसे हाई कोर्ट में आप रीट पिटीशन में जा सकते हो, तो रीट पिटीशन इज बेसिकली अ स्टैट्यूटरी पावर टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर उसमें 5 टाइप्स ऑफ रीट है। अगर आपका पर्सनल राइट वायलेट हो रहा है, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, अगर आपको किसी चीज़ के रिलेटेड डायरेक्शन चाहिए, तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द हाई कोर्ट टू टेक द नेसेसरी एक्शन, टू टेक द नेसेसरी डायरेक्शन टूवर्ड्स योर लाइक, मतलब आपकी जो भी डाउट है या फिर आपकी जो भी केस है, उसके रिलेटेड यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द हाई कोर्ट। बट इन सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हो सर। सुप्रीम कोर्ट में आप पीआईएल में जा सकते हो और एसएलपी में जा सकते हो। एसएलपी इन द सेंस स्पेशल लीव पिटीशन, जो कि फाइल होती है इम्प्यूज ऑर्डर के अगेंस्ट में, जो आपका बॉम्बे हाई कोर्ट से फिर या फिर जो भी आपका जो हाई कोर्ट का मैटर रहेगा, उस ऑर्डर को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो सर, इज इन स्पेशल लीव पिटीशन के अंदर। और पीआईएल इन द सेंस पब्लिक इंटरेस्ट जब भी आपका वायलेट होता है, लाइक मतलब अगर कोई एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है, या फिर जैसे आप अभी देख रहे हो, जैसे आई ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू पुणे, अगर मुझे कुछ वहाँ पे फाइंड आउट हुआ, एक ऐसा कॉज ऑफ एक्शन जो मेरे भी वायलेशन में हो रहा है और पब्लिक के भी वायलेशन में हो रहा है,
So I can file a PIL. I can file either at the Bombay High Court or either at the Supreme Court. But PIL हम तभी फाइल कर सकते हैं when there is a violation of the group people, when there is a violation of public interest. Okay. Yes. अगर कोई गलती से पीआईएल डायल करता है, मतलब पीआईएल अगर करता है तो फिर उसको फाइन वगैरह भी लगता है, राइट? सर इट्स डिपेंड ऑन द कोर्ट टू कोर्ट. ओके. कॉस्ट भी लग सकता है सर, अगर उसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं हो या फिर उसमें कोई ऐसा आपका कॉज ही नहीं हो. ओके. हाँ, तो फिर अननेसेसरी वी कैन से इट इज अ वेस्ट ऑफ कोर्ट टाइम. ओके, ग्रेट. सो जो हाई प्रोफाइल केसेस होता है, राइट, हम्म. वो पब्लिक अटेंशन करता है, राइट? बहुत Perhaps. ज्यादा. और कैसा बैलेंस करते हो? एक मीडिया ट्रायल होता है पैरेलली और आपका एक कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स भी होता है. करेक्ट. तो हाउ डू यू बैलेंस दैट? क्योंकि मीडिया एक्सपेक्ट करता है इमीडिएट उसको जजमेंट चाहिए, लेकिन ऐसे होता नहीं है, राइट? नहीं सर, क्योंकि मीडिया ट्रायल और कोर्ट रूम जो क्राफ्ट से, कोर्ट रूम प्रोसीडिंग से, दैट इज टोटली डिफरेंट सर. टोटली डिफरेंट है. हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते सर, क्योंकि आजकल आप देखिए कि जैसे कोलकाता में जो आरजी कार का केस हुआ, फिर उसके बाद में अभी अभी लेटेस्ट जो केस चल रहा है उत्तराखंड में, भंडारी का केस चल रहा है, अंकिता भंडारी मर्डर केस, 19 ईयर्स ओल्ड गर्ल. सो ऑल पीपल आर डिमांडिंग कि एक्सपीडिएट किया जाए, या फिर मीडिया पे जो कोई आ रहा है अपना अपना ओपिनियन दे रहा है, अगर उसे कंपेयर करें और रियल लाइफ में जो कोर्ट में है, दोनों को कंपेयर करें तो बहुत डिफरेंस है सर. और दोनों को बैलेंस करना इट्स अ वेरी लाइक वी कैन से इट्स अ वेरी बिग टास्क. क्योंकि कोर्ट में आप फिर कोर्ट सर, लॉ इज वेरी कॉम्प्लेक्स. राइट. लॉ इज वेरी कॉम्प्लेक्स. मतलब आप एक जगह बोल रहे हो कि उसको सजा होना चाहिए. होना चाहिए, बट आप एक जगह उसे डिफेंस भी कर रहे हो, तो ये लॉ है सर. क्योंकि जान तो चली गई है, बट जो अक्यूज है, वो अक्यूज का भी फंडामेंटल राइट आता है ना सर, कि उसका भी ट्रायल हुआ जाए, उसको भी सुना जाए. तो ये लॉ है सर. लॉ इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल. एक डायलॉग याद आता है, राइट, वो सनी देओल का दामिनी मूवी में, तारीख पे तारीख. तारीख पे तारीख, राइट राइट. तो एक नॉर्मल फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि बहुत ज्यादा खींचता है, राइट, कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स. पता नहीं 15 साल 20 साल हो सकता है लोग मर गए होंगे, लेकिन उसका तो आपका क्या व्यू है उस पे? प्रोसीडिंग्स पे डिपेंड है सर. अभी हमारी इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे डिपेंड है कि लेकिन एक टाइम बाउंड जस्टिस सिस्टम, सोशल जस्टिस टाइम बाउंड होना नहीं चाहिए एक, होना तो चाहिए सर, बट इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए ना उसका. आप ऐसा कोई लॉ में प्रोविजन नहीं है कि मतलब अगर आज एक कोई मर्डर का केस हुआ, आज कोई एक XYZ केस हुआ, तो उसका टाइम बाउंड में 2 साल में खत्म करो, 3 साल में खत्म करो. ऐसा तो नहीं है. सिर्फ वो स्पेशल स्टैट्यूट में है सर, वो स्पेशल स्टैट्यूट पे भी फॉलो नहीं होता है. लेकिन बस ये कहीं ना कहीं पे ना एक दूसरे पे ही ये है, मतलब एक दूसरे पे ही वो कनेक्टेड डॉट से. पेंडेंसी बढ़ रही है, लोग मीडिया ट्रायल से डिमांड कर रहे हैं कि आप इसे जल्दी से जल्दी ये करो, तो दोनों चीज़ें कैसे बैलेंस कर पाएंगे सर? या तो एक तो पेंडेंसी कम करने के लिए हमें कुछ प्लान करना ज़रूरी है, कुछ एक्शन या फिर कुछ ऐसा गवर्नमेंट के थ्रू आप बोलो कि जजेस की जो ये है नंबर ऑफ जजेस है उसे इंक्रीज बढ़ाना, तो फिर अगर वैसा किया जाए तो फिर ये शायद पॉसिबल है सर. या फिर जो स्पेसिफिक जो केसेस है, जो हाई प्रोफाइल केसेस है आपने जैसे अभी बोला, अगर उसे हमें जल्दी से जल्दी लाना है तो फिर उसका एक्सपीडिएट ट्रायल करना पड़ेगा सर. तभी फिर वो एक मैसेज जा सकता है सोसाइटी में. यस. लोग क्रिमिनल्स क्या सोचते हैं, भाई ट्रायल तो होता रहेगा, 15-20 साल चला जाएगा, तो माइंड्स हुआ है ना हाँ उनको बेनिफिट माइंडसेट. हाँ वो मिल जाता है, राइट. जस्टिस डिलेड इक्वल टू जस्टिस डिनाइड, राइट. तो अगर ट्रायल लिमिटेड टाइम के अंदर होगा, 3 साल 5 साल जो भी है, एक फिक्स करेंगे तो एटलीस्ट उनको डर रहेगा, राइट, क्रिमिनल्स को, भाई 100%. हमें अगर उनको 15-20 साल हुआ मैं तो मर गया होऊंगा, राइट. तो जस्ट इसको खींचते रहो, कोर्ट रूम प्रोसीडिंग खींचते रहो, सो दैट, तो वो एक प्रॉब्लम होता है. हाँ, तो तो वो कब पॉसिबल होगा? जब इम्प्लीमेंटेशन होगा, जब कोई नया एक्ट आएगा या फिर नया उसके रिलेटेड एक पर्टिकुलर सिर्फ उसी के रिलेटेड लॉ आएगा, कि टाइम बाउंड आएगा, तो फिर उस वक्त ही ये पॉसिबल है सर, ऐसा मुझे लगता है. जुडिशियल कमीशन कुछ तो आया था बीच में, एक आई थिंक पार्लियामेंट ने लाया था, लेकिन फिर जजेस ने उसको स्ट्राइक आउट कर दिया, राइट. तो फिर कैसे बैलेंस आउट करना है, एक साइड में जुडिशियल, एक साइड में आपका अभी तो जो न्यू BNS आया है, तो उसमें वी आर होपिंग कि कुछ हो जाए. जस्ट वी आर होपिंग. क्या है बीएनएस?
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बेसिकली जो पुराने लॉ थे आईपीसी, सीआरपीसी, राइट। उसी को ये कन्वर्ट किया है। तो उसमें केवल नाम ही चेंज हुआ है या उसके अंदर का कंटेंट? अंदर का कंटेंट भी कुछ-कुछ चेंज हुआ है अच्छा। और जैसे कोई पहले ट्राइबल बाय सेशंस कोर्ट था, ट्राइबल बाय जेएमएफसी कोर्ट था, तो उसे कहीं न कहीं पे उन्होंने चेंजेस किया है, बस दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। एक्चुअली दिस क्रिमिनल लॉज राइट, यस। दे कैरीज इमोशनल मतलब वेट। हाँ। आप कैसे उसके साथ बैलेंस करते हो माइंड का मेंटल रेजिलियंस राइट? क्योंकि आप हैंडल करते करते केसेस आपके ऊपर भी मेंटल स्ट्रेस जाता है। बहुत ज़्यादा आता है। तो मतलब कैसे? कभी-कभी क्या होता है कि लाइक मतलब आप अगर आपको क्रिमिनल में प्रैक्टिस करना है, तो फिर आपको इमोशनल बैलेंस सीखना पड़ेगा। राइट। मैं तो यही मैसेज देना चाहती हूँ क्योंकि आप एक तरफ सपोज़ आपके पास अभी एक कोई मर्डर का केस आया है फॉर एग्ज़ाम्पल एंड द विक्टिम इज़ अ माइनर गर्ल और आप उसमें ही जो अक्यूज़ है उसे आप डिफेंस कर रहे हो, जो जिन्होंने एक्स-वाई-ज़ेड मर्डर किया है। तो आपको दोनों भी थॉट आएगा कि वो विक्टिम है, वो माइनर है, उसके साथ बुरा हुआ। फिर आपको ये भी थॉट आएगा कि नहीं मुझे इसे डिफेंस करना है। तो वो फिर आपको एक स्ट्रैटेजी बना के चलनी पड़ती है, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इन द क्रिमिनल लॉ। और आप स्पेसिफिकली अगर डिफेंस प्रैक्टिस करते हो तो फिर इट्स अ वेरी आई कैन से दैट इट्स अ वेरी बिग टास्क फॉर मी टू बैलेंस एंड टू हैंडल बिकॉज़ दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चालू रहती है कि कहीं मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, कहीं मेरे से कुछ गलत सबमिशन ना हो जाए, कहीं मैं अगर इमोशनल अटैच हो गई, तो फिर वो इमोशनल अटैचमेंट से मेरे मेरे अल्टीमेटली मेरे क्लाइंट पे सफ़र नहीं होना चाहिए। क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन मी ना कि हाउ आई रिप्रेजेंट माय क्लाइंट बिफोर द कोर्ट। यस। एक लीगल प्रोसीडिंग्स होता है और एक होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। हुँ। तो आप कुछ एग्जांपल्स देंगे कि आपके करियर में ऐसा कुछ आया है? सर देखिए लीगल प्रोसीडिंग्स जो होता है ना वो स्टैट्यूट के रिलेटेड होता है। राइट। अगर एक ऑफेंस है, अगर एक कोई क्रिमिनल लॉ में ऑफेंस हुआ है जैसे 420 है, चोरी है, तो उसका वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जाएगा। अगर कोई कमर्शियल ट्रांज़ैक्शन है, तो अगर कमर्शियल ट्रांज़ैक्शन में क्या बनता है बेसिकली एग्रीमेंट बनता है। फिर उस एग्रीमेंट में डिपेंड होता है कि आपने उसमें आर्बिट्रेशन का क्लॉज़ डाला है क्या? नहीं डाला है क्या? तो फिर वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है सर। उसे हम आर्बिट्रेशन बोलते हैं, मेडिएशन बोलते हैं। हाँ, मैंने किया तो है ऐसा बट इट्स रिलेटेड टू ओनली कॉन्ट्रैक्ट, ओके। कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जैसे जहाँ पे आपके पैसे फँसे हुए हैं किसी के पास में, तो उस वक़्त आपको कोर्ट कभी-कभी खुद बोल भी सकता है कि आप एक बार मेडिएशन कर लो। ये फैमिली मैटर्स में भी होता है सर। जैसे अगर आप डिवोर्स के केसेस फाइल करते हो, तो दैट टाइम कोर्ट ट्रांसफर्स योर केस टू मेडिएशन। सो उस टाइम पे भी कोर्ट गिव्स अपॉर्च्युनिटी टू बोथ द पार्टीज कि आप ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो रहा है क्या? आप देखिए, आप आपके रिश्ते को एक दोबारा चांस देके देखिए। अगर वहाँ पे बात नहीं बनती देन कम बिफोर द कोर्ट, फिर कोर्ट प्रोसीडिंग चालू हो जाती है। बट आई फाइंड इट अ वेरी गुड वे टू रिज़ॉल्व योर मैटर, टू फाइंड अ सॉल्यूशन इन योर मैटर। बिकॉज़ आप अल्टीमेटली जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स पे आते हो तो इट विल टेक अ मोर टाइम। बट अगर आप आर्बिट्रेशन की बात करते हो तो आर्बिट्रेशन में हार्डली आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है सर ज़्यादा एज कंपेरेटिवली कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो आई फाइंड आउट आर्बिट्रेशन इट्स अ बेस्ट वे एंड टू रिजॉल्व योर मैटर आई थिंक। टाइम एंड मनी ऑल्सो बहुत यस। होता है। नॉर्मल लोगों का एक व्यू होता है राइट, जो वकील होते हैं वो केस को खींचते हैं ज़्यादा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ आपका हियरिंग होगा राइट, वो पैसे भी पर हियरिंग मिलता है। तो आपका क्या व्यू है? एक मैं तो जल्दी से जल्दी खत्म कर दी की कोशिश करती हूँ। तो आपका लॉस हो जाएगा राइट फाइनेंशियली। नहीं, आई डोंट फाइंड इट एज अ लॉस बिकॉज इफ आई हैव अ नंबर ऑफ केसेस ओके। तो फिर मुझे नंबर ऑफ डिस्पोज भी चाहिए, नंबर ऑफ डिस्पोज ऑफ भी चाहिए। वो बैलेंस करना पड़ेगा ना मुझे। अगर मेरे पास 1000 केसेस है आज, राइट। तो कम से कम मुझे मंथली कम से कम 100 तो केसेस डिस्पोज़ ऑफ करने हैं। नहीं तो वो तो फिर बढ़ते ही चला जाएगा और इसका अल्टीमेटली सफ़र मुझे ही करना है, ना कि मेरे क्लाइंट को करना है। हाँ, उसमें से कुछ ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जो आपको लमसम फीस देते हैं, जो कुछ पर हेयरिंग देते हैं। तो ये कैटेगरी उन लोगों के लिए जो सिर्फ़ पर हेयरिंग की फीस लेते हैं। आई आई फाइंड इट एज़ अ वे ओके। ऐसे। तो जो एक सेंसिटिव केस था भीमा कोरेगांव राइट, हुँ, इट क्रिएटेड नेशनल डिबेट। हुँ। आई थिंक व्हाट
व्हाट डिड इट टीच यू, राइट? आपने इसको हैंडल किए थे या वो केस मैंने मेरे सीनियर के साथ हैंडल किया था सर। और डिसेंसी रिलेटेड टू डिसेंसी आल्सो इन इंडिया, कैसा वो? वो बेसिकली पुणे में जो है भीमा कोरेगांव स्तंभ, तो उसके अगेंस्ट में एक स्टेटमेंट दिया था। सेनानी करके कोई है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, करनी सेनानी समथिंग कोई है, हाँ। तो उनके अगेंस्ट में था वो कि उसे बुलडोजर से तोड़ दिया जाए, उसे ये किया जाए, उसे वो किया जाए। तो फिर उसके अगेंस्ट में मेरे जो प्रीवियस सीनियर थे, जिनके साथ में मैंने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो उन्होंने कंप्लेंट फाइल की। फिर ही केम बिफोर द पनवेल सेशंस कोर्ट फॉर बेल, देन हिज बेल गॉट रिजेक्टेड, देन हाई कोर्ट, देन फिर सुप्रीम कोर्ट। सो वी फाइट till Supreme Court in that matter. Ultimately, he got bail from the Supreme Court, but side by side he learned a lot कि जो भी हुआ वो मतलब गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। Yes. Actually, as a woman in criminal litigation, right? What barriers did you face early on, and how they are evolved? क्योंकि वुमेन का बहुत सारे इश्यूज रहता है, राइट? तो कैसे आप बैलेंस करते हो हियरिंग? बैरियर्स तो मुझे पहले से नहीं थे। ओके, हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्टली बैरियर्स तो मुझे पहले से नहीं थे, लॉ में आने से पहले से ही नहीं थे, क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी हार्ड वर्किंग बैकग्राउंड। पेरेंट्स का कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं कुछ था? नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है, इनफैक्ट दे सपोर्ट मी अ लॉट। ओके, It just because of them I'm sitting in front of you today. I can say that whatever I achieved in law in my life, it's just because of them. तो बैरियर्स तो ऐसा कुछ था नहीं मेरे लाइफ में, क्योंकि लॉ में आने से पहले भी आई कनेक्टेड थ्रू वेरियस एनजीओज, एनसीसी, एनएसएस। सो उन्होंने मेरे बैरियर्स तोड़ दिया था बेसिकली। और क्रिमिनल लॉ आई फाइंड इट अ वेरी एंजॉयमेंट वर्क, जहाँ पे मुझे मतलब आपके सामने लोगों को पढ़ना पसंद नहीं, मुझे पढ़ना पसंद है। जहाँ पे लोग 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 पढ़ने से डरते हैं, मुझे वहाँ पे पढ़ना अच्छा लगता है। आई स्पेंड ऑलमोस्ट 3-4 हावर्स अ डे इन लाइब्रेरी एट हाई कोर्ट। तो दैट्स बिल्ट मी एक्चुअली। मतलब बैरियर्स ऐसा कुछ नहीं है सर, अगर मैं बोला जनरली वुमेन प्रेफर नहीं करते हैं, लॉ में भाग दौड़ बहुत है, राइट? हाँ। वो सोचते हैं कोई चलो ऑफिस का जॉब, आईटी जॉब या कहीं पर ऐसे छोटे मोटे जॉब में हम सेटल हो जाएं जहाँ भाग दौड़ ज्यादा नहीं आई होगा। फाइंड इट एज अ कंफर्ट जोन। ओके, फॉर यू इट इज कंफर्ट। फॉर मी इट इज अ कंफर्ट जोन, बट आई ऑलवेज प्रेफर टू स्टे आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। ओके, क्योंकि आई वेंट टू औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर फॉर माई लॉ स्टडीज। देयर आई स्टे ऑलमोस्ट 4 years विदाउट माई पेरेंट्स सपोर्ट, विदाउट एनीवन सपोर्ट। आई डिड एवरीथिंग एट माई ओन। सो फिर आप जब ये इतना सारा फेस करके आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, तो उस वक्त आपको बैरियर्स क्या होता है ये भी नहीं पता चल जाता है। अल्टीमेटली आपको वो एक आपका टारगेट अचीव करना होता है, तो उसके पीछे आप भागते रहते हो, भागते रहते हो, भागते रहते हो। वो काफी इजीली अपने टारगेट अचीव कर दे, राइट? काफी इजीली नहीं बोल सकते। आपने बोला इजीली, मैं सोचा वो इजीली अपने नहीं नहीं नहीं, इजीली तो कुछ भी नहीं है सर। ओके, इजीली सिर्फ बैठ के जज करना इजी है, बट इस दुनिया में इजी कुछ नहीं है। आपको देना पड़ेगा, तब आपको रिटर्न्स में मिलेगा, ओके, मुझे ऐसा लगता है। फिर लॉ में आपका डेडिकेशन, आपका पैशन, आपका एक एम चाहिए, आपको क्या करना है। बहुत सारे लोग डरते हैं प्रैक्टिस में आने के लिए, बट मैं दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल, दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन मानती हूँ लॉ। मतलब लोगों ने वो एक मिथ बनाया हुआ है कि लॉ इज वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब राइट। लोगों ने एक अपने अंदर ही डर बना के रखा है, मतलब लॉयर मतलब कुछ नहीं होगा, मुझे लेट होगा, मुझे डिले होगा जस्टिस के लिए। ऐसा कुछ नहीं है सर। एक्चुअली क्या है, लोगों का भरोसा टूट गया है, जो बहुत सारे लेट में आता है जो जजमेंट्स। तो एक उसका तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। वो एक बार अगर उनका फेथ आ जाएगा, राइट? हाँ, तो वो क्या, वो खुद ही सोचते हैं भाई हम ये करेंगे रे, ऐसा करना नहीं चाहिए। वो बोलते हैं हम ही हैंडल करेंगे, डायरेक्टली उससे ये करेंगे, खून खराबा। लॉ को खुद के हाथ में ले लेते हैं, राइट? क्योंकि उन जस्टिस उनको टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मिल नहीं रहा है। तो अगर वो टाइम पीरियड मिले, लोग भी हाथ में नहीं लेंगे, राइट?
टाइम पीरियड में मिलने के लिए भी सर हमारे पास में मतलब जैसे होता है ना, 2 चीज़ें होती है, एक डिमांड होता है, एक सप्लाई होता है। लोगों की डिमांड है बट हमारे यहाँ पे सप्लाई नहीं है ना इन सारी चीज़ों की। ये प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ। तो बहुत सारे लोगों को आना चाहिए लॉ प्रोफेशन में, राइट? जैसे लोग डरते हैं, सो दैट थोड़ा-सा अगर हमारा नंबर बढ़ जाएगा, राइट? तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। 100%। How does your background in constitutional law influence the way you argue in for bail and writ matters? वाज़ वेरी गुड, वंडरफुल। Okay. हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट एक्चुअली। मतलब जहाँ पे अ किसी का राइट वायलेट हो रहा है, किसी को रेमेडीज़ नहीं मिल रही है, तो फिर वो केस को बनाना, फिर वो हाई कोर्ट के सामने पुट अप करना, फिर उसमें एक अच्छा ऑर्डर लेना, वो मेरा सबसे फेवरेट काम है। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस में अ, मैंने ऑर्डर्स लिए हैं, मैंने जजमेंट्स लिए हैं। अभी तक आई गिव 2 टू 3 लैंडमार्क जजमेंट। एमसीओसी में बेल, वो मेरा लैंडमार्क जजमेंट था। सेक्शन 15 मोका, जिसे मोका बोलते हैं, एमसीओसी मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रिलेटेड है। क्या जजमेंट जजमेंट था वो? मतलब सेक्शन 15 के रिलेटेड था एमसीओसी। जो हम स्टेटमेंट देते हैं, उसे वो पुलिस वालों के सामने अगर हम सेक्शन 15 के अंदर स्टेटमेंट देते हैं, तो उसी को वो आगे कंटिन्यू करके फिर उसी को चार्ज फ्रेम कर सकते हैं। Okay. तो बेसिकली वो बार को हमने तोड़ दिया हाई कोर्ट से, तो वो इंडियन कानून पे भी रजिस्टर्ड हुआ है। Yes. And recently I got one bail in NDPS case also from Aurangabad the bench. 700 tablets were found with my client in NDPS. So how he रेड हैंडेड उसको पकड़ा गया, फिर उसे कैसे उस केस में फंसाया गया, फिर वो कैसे हमने उसको कोर्ट के सामने आर्ग्यू किया, फिर वो बेल मिला उसे विद इन अ पीरियड ऑफ आई थिंक 1.5 month. सो इट वाज़ अ वेरी बिग विक्ट्री फॉर मी, क्योंकि ही वाज़ जस्ट अ 21 ईयर्स ओल्ड बॉय, 21 ईयर्स का था वो। तो उसके साथ कैसे प्रोसिक्यूशन ने केस बनाया था, उसके ऊपर कैसे एलिज ऑफेंस लगाए थे। फिर वो टैकल करना, फिर वो रियल कोर्ट रूम में उसे डिबेट करना। सो ये जर्नी वाज़ वेरी गुड। मतलब आपने अभी पूछा ना मुझे कि एक्सपीरियंस कैसा है? Right. फिर रिसेंटली हमने एक जीआरबी चैलेंज किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का हाई कोर्ट के सामने। तो ये जब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे बात आती है, तो फिर आपका जो है प्रैक्टिकल, तो वो वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई होता है सर। आप बुक में पढ़ते हो और जो प्रैक्टिकल होता है वो टोटली डिफरेंट होता है सर। Okay. यस। So related to corporate firms, right? हम्म। So how do you advise corporate firms along with the criminal practice? तो क्या-क्या उनमें बदलाव चाहिए, राइट? यस। कैसे उनको गाइड करते हो? वहाँ पे तो मेरा मतलब वर्किंग थोड़ा डिफरेंटली होता है। आई प्रेफर एज अ मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के रिलेटेड। फिर ड्राफ्टिंग में हेल्प होती है मेरी उनके, एग्रीमेंट्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो आपका अगर क्लाइंट बताएँगे तो कॉर्पोरेट क्लाइंट ज़्यादा है या नॉर्मल क्लाइंट ज़्यादा? क्रिमिनल। क्रिमिनल। यस। So what reforms do you expect in India's criminal justice system? And how can young lawyers contribute for this? क्या-क्या आपको चाहिए, बदलाव चाहिए, होना चाहिए, राइट, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में? पेंडेंसी कम होना चाहिए केसेस का। ओके। उसके लिए तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि नंबर ऑफ जजेस अगर हमारे पास में बढ़ते हैं, नंबर ऑफ कोर्ट्स इस्टेब्लिश होते हैं। जैसे अभी पुणे है तो पुणे में एक ही सेशंस कोर्ट है जो मेन है। फिर उसके बाद में अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, जैसे मावड़ में है एक, या शिवाजी नगर में जो है। अगर वैसे नंबर ऑफ कोर्ट्स हम बढ़ाते हैं और नंबर ऑफ जजेस बढ़ाते हैं, तो फिर डिवाइडेशन हो जाएगा और कहाँ ना कहाँ पे पेंडेंसी को फिर स्टॉप लग सकता है। ईज़ी तो नहीं है ये, हाँ, इज़ी। बिल्कुल ईज़ी नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी बिग टास्क फॉर गवर्नमेंट एज़ वेल। राइट। यस। डिजिटलाइज़ेशन होना चाहिए। डिजिटलाइज़ेशन वन टच पे सब होना चाहिए। जैसे अभी फाइलिंग्स तो हमारी कोर्ट पे है, बट ज़्यादा से ज़्यादा वीसी, अभी जैसे मुझे कभी-कभी बिगेस्ट टास्क रहता है कि मेरा ट्रायल कोर्ट में मैटर लगा रहता है, बट मैं हाई कोर्ट में रहती हूँ, तो उस वक़्त मैं ट्रायल कोर्ट कभी-कभी नहीं पहुँच पाती हूँ। राइट। तो आई प्रेफ़र कि मेरे जूनियर जाए या मेरे एसोसिएट जाए। तो उस टाइम पे अगर डिजिटल रहेगा तो फिर वो वहाँ पे बैठ के मैं
मेंटल फ्री वो काम कर सकती हो। हाँ, टाइम बचेगा। टाइम बचेगा। और यंग लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन तो होना ही चाहिए सर, ऐसे मैं मानती हूँ। बीइंग एज़ अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, तो ये देखिए ये आपको एक अलग जर्नी पे लेके जाता है लॉ। आप सोसाइटी से कनेक्ट होते हो, आपको रियल पता चलता है कि आपके सोसाइटी में क्या हो रहा है, जब आपके पास में पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस आते हैं। तो अल्टीमेटली आपका कंट्रीब्यूशन थ्रू योर कंट्री है, मैं ऐसा मानती हूँ। जब आप खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर बोलते हो, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में प्रैक्टिस करना, पीएल में प्रैक्टिस करना, आप जैसे बड़े-बड़े सीनियर लॉयर्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो दे आर आल्सो फाइटर। सो दे आर आल्सो फर्स्ट जनरेशन, उन्होंने भी कहीं न कहीं शुरुआत की होगी और तभी तभी वो जाके वहीं पे रीच हुए होंगे। सो आई फाइंड इट एज़ कि आपका कंट्रीब्यूशन तो अल्टीमेटली होता ही है सर। आप देखो ना, मतलब आप किसी अक्यूज़ को जेल से बाहर निकाल रहे हो, अगर वो फ़ॉल्स केस रहेगा और वो जेल में कम से कम 10-12 साल से रहेगा या कम से कम 4-5 साल से रहेगा, आप उसको नई ज़िंदगी दे रहे हो सर। मैं ऐसे मानती हूँ, आप उसको एक नई ज़िंदगी दे रहे हो, आप उसको एक नया नया लाइफ़ दे रहे हो। रिसेंटली माय फर्स्ट ट्रायल मैंने 376 में एक एक्विटल का ऑर्डर लिया कल्याण सेशंस कोर्ट से। तो ही वाज़ इन जेल सिंस लास्ट 3 एंड हाफ ईयर्स, तो वो कहाँ न कहाँ पे फ़ॉल्स रेप का केस लगा था उसके ऊपर। तो ही सफ़र्ड अ लॉट, हिज़ फैमिली सफ़र्ड अ लॉट। बहुत सारी चीज़ें हुई, अप्स डाउन्स हुए फैमिली में, पूरी फैमिली कैसे होता है ना सर, क्रिमिनल लॉ में ऑफेंस एक एक पर्सन करता है, बट सफ़र पूरी फैमिली करती है। राइट। तो फिर उनके फैमिली को हैंडल करना, दोनों को बैलेंस करना, फिर हमारे लाइफ को बैलेंस करना, इट्स अ वेरी बिग टास्क, बट येस, आई फाइंड इट एज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोफेशन एंड आई वाज़ हैप्पी फॉर हिम कि वो बाहर आया। व्हेन ही गॉट अरेस्टेड ही वाज़ 21 ईयर्स ओल्ड, व्हेन ही गेट एक्विटल ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, जब उसे अ, निर्दोष छोड़ा गया कोर्ट से, तो ही वाज़ 23-24 ईयर्स ओल्ड। 3 इयर्स पास्ट। 3 इयर्स। तो सपोज़ कोई 30 के बाद राइट हुँ। लॉ पढ़ना चाहता है, उसमें करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए ऑप्शन है या नहीं है अभी के एजुकेशन सिस्टम? ऑफ कोर्स ऑप्शन है सर। लॉ में कोई एज बैरियर नहीं है। ओके, तो हुँ। कैसे पढ़ेगा वो? मतलब कॉलेजेस में कर सकता है या डिस्टेंस एजुकेशन के नहीं, कॉलेज में। थ्रू? लॉ में डिस्टेंस एजुकेशन का आपको ऑप्शन नहीं है सर, इट्स अ फुल टाइम। यस। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं, कॉर्पोरेट वाले होते हैं, जो रिटायर्ड होने के बाद में जिनको पढ़ना पसंद है, जिनको कुछ करना है सोसाइटी में, तो दे टूक एडमिशन। जैसे आई सेड कि 3 इयर्स का कोर्स है आफ्टर ग्रेजुएशन, 12th के बाद इट्स अ 5 इयर्स कोर्स। तो अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है, तो आप 3 इयर्स का कोर्स कर सकते हो और फिर 3 इयर्स के बाद में आप अ, रजिस्ट्रेशन करके महाराष्ट्रीयन गोवा बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करके आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो सर। आई हैव लॉट ऑफ पीपल हू आर इन माय हू आर इन माय कॉन्टैक्ट, जिन्होंने 30s के बाद भी शुरू किया है एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। तो आपके अंदर एक पैशन चाहिए सर बेसिकली। हाँ। हाँ, अदरवाइज़ इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। हाँ, क्योंकि आपकी भागा-दौड़ी बहुत है, बहुत। बहुत सारे कोर्ट कोर्ट नंबर 1, कोर्ट नंबर 2 पता नहीं कितने लेवल आपको जाना है, राइट? यस, तो आपको नहीं लगता है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, हुँ। वो क्या सपोज़ एक साइड में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, राइट? दूसरे साइड में बैटल ऑफ लॉयर्स है, राइट? लाखों करोड़ों डाल दिए, एक लॉयर नहीं 10-10 लॉयर बड़े-बड़े लॉयर उनके लिए लड़ो, तो कैसे होगा? कि इम्बैलेंस हो रहा है, राइट? जिसके पास पैसा है वो खींच सकता है, वो चीज़ को खींच के राइट, वो जस्टिस आपको इमीडिएट नहीं मिलेगा और उसको डिले करके उसका लाइफ ही चला जाएगा, राइट? बहुत सारे केसेस ऐसे चलता है। अब देखो हाई प्रोफाइल केसेस, वो जानबूझ के बैटल ऑफ लॉयर्स राइट? हुँ। पता नहीं 8-10 लॉयर होते हैं और हुँ। केस को खींचते हैं और जब तक वो ज़िंदा है। तो इसमें थोड़ा आपको नहीं लग रहा है, थोड़ा नाइंसाफ़ी हो रहा है? जिसके पास पैसे है वो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट या वो थोड़ा खींच पा रहा है, राइट? जिसके पास पैसे नहीं है, उस साइड में एक ही लॉयर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या कोई भी, राइट? तो फिर क इस यहाँ पे फिर कंप्लेनेंट की ड्यूटी आती है कि वो भी उसका लॉयर अपॉइंट कर सकता है। वो भी मल्टीपल लॉयर हुँ। बस असिस्ट टू पीपी, असिस्ट टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर को करके वो भी कर सकते हैं। यस, तभी वो फिर बैलेंस। बैलेंस हुआ क्योंकि यस, अगर 10 लोग लड़ रहे आई हैं, कैन राइट? अंडरस्टैंड। तो यस, बहुत डिफिकल्ट हो यस, रहा है। यस, यस। लेट्स हैव ए क्विक रैपिड फायर राउंड, ठीक है? मोस्ट ड्रामेटिक थिंग यू हैव सीन इन ए कोर्ट रूम दैट नेवर मेक्स इनटू लीगल ड्रामास?
ऐसा कुछ हुआ है क्या ड्रामेटिक थिंग कोर्ट रूम में जो थोड़ा सरप्राइजिंग था, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग था या फनी था? हाँ, एक बार हुआ है। आई वाज़ सिटिंग इन हाई कोर्ट एंड आई वाज़ वेटिंग फॉर माय सीरियल नंबर, तो 2 पीपल केम जिनका मैटर था पेंडिंग। तो उनका मैटर रीच नहीं हो पा रहा था हाई कोर्ट में, तो दे शाउट ओके, बिफोर द हियरिंग, इन मिडल ऑफ द हियरिंग। ओके, सो कोर्ट ने उनको डाँटा और फिर पुलिस आके लेके गई को। सो दैट वाज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एक्चुअली। ओके। तो फिर मुझे तभी लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, तो दैट वाज़ न्यू थिंग। तो मैंने सीखा उसमें से कुछ। यस। Actually, how often do lawyers actually finish reading that long judgments? पता नहीं 500 पेज का 1000 पेज का जज आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? या एआई को दे दो तो भाई समराइज करके मुझे दे दो अभी बस। नहीं सर, नहीं। देखिए, एआई का डिफरेंट रोल है सर। अगर आप टोटली एआई पे डिपेंड रहोगे तो यू कांट विन योर केस। इतना बड़ा जजमेंट कौन पढ़ेगा? नॉर्मल आदमी तो पढ़ नहीं सकते, राइट? 400 नहीं 500 सर, पेज का पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। लॉयर्स पढ़ सकते हैं। हाँ, आप पढ़ ओनली अ ह्यूमन बीइंग कैन डू दैट। आई फाइंड इट बिकॉज़ वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। जब आपके पास इतना बड़ा केस है, इतना बड़ा मैटर है और आपको पता है उसे डिफेंड करना है, और वो 500 जजमेंट फिर कुछ नहीं लगता है सर हमें। हाँ, yesterday only I finished one NDPS charge sheet which was 4 to 500 pages. ओह माय गॉड! कितना टाइम लगा पढ़ने के लिए उसको? It's around 4.5 hours. ओह माय गॉड! Yeah, I sit in the library and I finish it in the evening, afternoon and evening till evening. तो नोवेल जैसा पढ़ते रहे आपने। इंटरेस्ट आता है। आई सेड ना, इट्स ओके। इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट उस चीज की ओर आपको खींचते जाएगा, फिर अल्टीमेटली आप ही को उसी में हैप्पीनेस मिलते जाएगा। One legal myth from movies you would like to file a permanent objection against. परमानेंट ऑब्जेक्शन अगेंस्ट ऐसा कुछ मूवी में दिखाते हैं जिसके आप फॉर्म में नहीं हो, राइट? लॉ को कुछ नेगेटिव हो में ड्रामेटिक हो गया ना फिर वो तो। उनको उनकी पीआर बढ़ानी है, क्योंकि केस में जो रियल में होता है वो कभी होता भी है, ऐसा नहीं है। अभी आप देखो, सीरीज है जैसे दिल्ली क्राइम है जो फर्स्ट वाला था, विच वाज रिलेटेड टू निर्भया केस जो दिल्ली गैंगरेप हुआ 16 में 2013 में, 13 में ओके 13 या 12 में, आई थिंक सो। सो उस वक्त वो दिल्ली क्राइम एक लोगों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि समझने के लिए एग्जैक्टली क्या हुआ था। बट हम उसे ये नहीं बोल सकते कि वो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था, क्योंकि आप हर चीज नहीं दिखा सकते हो ना सर मूवीज में। राइट राइट यस, क्योंकि प्राइवेसी भी एक ये इम्पोर्टेंट प्राइवेसी भी कहीं ना कहीं पे ब्रीच कुछ, होती है। राइट? इफ द लॉ हैड इमोजीज, राइट, देन हाउ डू डिस्क्राइब दैट डेली प्रैक्टिस है? इमोजीज में आई थिंक लॉ के साथ मैच नहीं कर रहा है, फिर भी अगर ओनली हर्ट, हट है कि बिकॉज आई लव द मोस्ट, जो चीज को मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, प्रैक्टिस मेरी, ओबियसली उसको मैं हर्ट में ही रिप्रेजेंट करना चाहूंगी एज एन इमोजी। ओके। यस। तो आपने इतने सारे केसेस हैंडल किए हैं, राइट? तो आपको क्या लगता है, आपका व्यू क्या है? कहाँ पर इतने सारे प्रॉब्लम से जो सब केसेस आ रहे हैं, कहीं कुछ मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ हम उनको अवेयरनेस दे सकते हैं क्या? सो दैट नंबर ऑफ केसेस है, कहीं पर कुछ हम कर सकते हैं क्या? वो डायरेक्ट कोर्ट को जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ फ़ील होता है आपको? अवेयरनेस की तो है जरूरत। क्या अवेयरनेस की मतलब कौन से रिलेटेड? जैसे मतलब बेसिक लोगों को 2 तरीके के अवेयरनेस कर सकते हैं। एक तो या तो उनको उनके फंडामेंटल राइट्स, ओके, उनको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि कंप्लेंट कब फाइल होती है, पुलिस स्टेशन में एफआईआर कैसे दर्ज होती है। क्योंकि व्हेन इट केम्स टू मी, देयर आर केसेस कि जिसमें मैं विक्टिम के तरफ से भी खड़ी रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ डिफेंस करती हूँ। तो म म मेरा व्यू ये है कि जब आपके साथ कोई एक क्राइम होता है, आप उसमें विक्टिम रहते हो, तो आपका बेसिक राइट पता होना चाहिए। जैसे अभी साइबर फ्रॉड का केसेस बढ़ते जा रहा है, काफ़ी साइबर तो फ्रॉड उसमें मैं मुंबई हाई कोर्ट से बोल रहा हूँ, तो आदमी भी डर जाते हैं। आई रिसेंटली वेंट टू आईएफएसओ दिल्ली, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट फॉरेंसिक लैब है साइबर के रिलेटेड।
वहाँ पे मैं दिल्ली जाती हूँ, तो फिर वहाँ पे मेरी केस थी, जिसमें कंप्लेनेंट को डिजिटल अरेस्ट किया गया था 1.5 मंथ एंड ही वाज़ अ आर्मी रिटायर्ड एक्स ऑफिसर। तो सोचिए मतलब आप कि उस कैटेगरी के लोगों को भी ये फेस करना पड़ रहा है। तो ये कहीं न कहीं पे अवेयरनेस कम होने की वजह से ही बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी तो चलो ठीक है, अभी तो आपको मैसेजेस आते हैं, आपको ओटीपी नहीं देना है, आपको किसी का फ़ोन आया तो आपको कंप्लेंट दर्ज करनी है, 139 पे आप कॉल कर सकते हो साइबर की कंप्लेंट दर्ज करने के लिए। ये अभी हो रहा है, बट अगर ये थोड़ा-सा पहले होता, तो शायद वो क्राइम रेट अभी बढ़ नहीं जाता था सर। जो कि अभी व्हाइट कॉलर क्राइम, जिसे व्हाइट कॉलर भी बोल सकते हैं हम लोग साइबर के। क्योंकि ये फ्रॉडलेंट जो होते हैं ना इसमें सर, दे आर वेरी स्मार्ट इनफ। वो ऐसी एक जगह पे बैठेंगे, उनके पास कंप्यूटर का सेटअप रहेगा सब, आपको फ़ोन करेंगे, आपको अरेस्ट करेंगे, आपको बराबर एक ह्यूमिलेट करेंगे उसी वे से, आपका सारा डेटा, आपका सारा प्राइवेसी उनके हाथ में ले लेंगे और फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते सर वो। फिर आपको वो जैसे बोलेंगे वैसे आपको करना ही पड़ता है। फिर ब्लैकमेल करेंगे, फिर इतना दो, उतना 100%। दो, मतलब वो खत्म ही नहीं आई होता। फाइंड इट सर, आप यकीन नहीं मानोगे, आई फाउंड देयर आर ट्रांजैक्शन ऑफ 55 लाख रुपीस, 75 लाख रुपीस। My God. My last case was in Delhi. I told you I went to Delhi last month only for that case only. 2 crore 40 lakh rupees case. Oh my God. You won't believe me. When I see the transactions, 3 लाख का ट्रांजैक्शन है, 35 लाख का ट्रांजैक्शन है, 45 लाख का है, 60 लाख का है, 75 लाख का है। मतलब आप ये इतना कर रहे हो, इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस। राइट। तो वो सॉल्व हुआ क्या केस, या वो चल रहा है अभी? नहीं हो गया वो सॉल्व। कितना? मैं तो डिफेंस उसमें मेरे क्लाइंट को उन्होंने ड्रैग किया था, तो उसमें मैंने बेल-वेल वो सब फॉर्मेलिटीज़ कर दी, जो मुझे करनी चाहिए थी बेसिकली एज़ अ डिफेंस क्रिमिनल लॉयर। बट मैंने उस मैं जब गई थी दिल्ली में, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया था उस केस में कि ये काम कैसे करते हैं ये फ्रॉडर्स, मतलब ये जब फ्रॉड करते तो उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट था। तो फिर मैं उसी रिलेटेड आईएफएसओ में गई थी मिलने के लिए ऑफिसर से कि मुझे बताओ आप ये कैसे होता है? क्योंकि अगर मैं उस फील्ड में हूँ, अब मेरे पास अगर आप पूछोगे तो क्रिमिनल मैटर ज़्यादा है और साइबर के केसेस ज़्यादा है। राइट। तो मेरे पास साइबर के एंटायर नेशन से कम 3 टू 4 स्टेट्स के केसेस है। तो मुझे हर चीज़ पे अलग-अलग स्ट्रैटेजी से काम करना पड़ता है। ऐसे अभी लास्ट मंथ ही व्हेन आई वाज़ इन पुणे में थी मैं इन द मिडल ऑफ नवंबर मंथ। तो नवंबर में भी मेरे पास एक केस आया था। ही वाज़ अ इंडस्ट्रियलिस्ट इन छत्रपति संभाजी नगर। उनके अकाउंट से भी 85 लाख रुपीस गए थे और उनको फ़ोन आया कि आपके पानी का बिल बाकी है, आपके पानी के बिल के लिए आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आप ये करिए, आप वो करिए। यू वोंट बिलीव ही वेंट टू बैंक से जाके उसने ट्रांज़ैक्शन किया। तो वो जो स्पैन ऑफ पीरियड होता है ना, आपको पहला कॉल आना और क्राइम के बाद में जो ट्रांज़ैक्शन है, हाँ। उस बीच में आपको किसी का अगर अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, तो आपका क्राइम होना रुक जाएगा और वो कहीं न कहीं पे ये लीगल अवेयरनेस से ही पॉसिबल है सर, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, साइबर फ्रॉड काफ़ी मतलब। साइबर फ्रॉड अभी काफ़ी ईज़ीएस्ट वे है सर क्राइम का ये, सबसे ईज़ीएस्ट वे है। आपके फ़ोन में एक एपीके फाइल आ जाती है, आपको बोलेंगे कि मैं यहाँ-यहाँ से बात कर रहा हूँ, आपको मैं एक एपीके फाइल दे रहा हूँ। एपीके फाइल आप देते हो, आपको देते हैं, आप डाउनलोड करते हो, आपका पूरा फ़ोन का हैंडलिंग उनके हाथ में चला जाता है सर। राइट। आप क्या कर सकते हो उस वक़्त? कुछ कुछ भी नहीं कर सकते हो। ना ही हमारे पास में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि जो हम उसे ट्रैक करें, क्योंकि आप कंप्लेंट होने के बाद में देखोगे तो देयर आर मल्टीपल लेयर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। मतलब आई डील लास्ट केस व्हिच इज़ रिलेटेड टू 94 लाख रुपीस। उसमें आप यकीन नहीं मानोगे सर, कम से कम 4000 प्लस ट्रांज़ैक्शन हुए हैं सर। ओके। हाँ, आप आप अभी कैसे 4000 ट्रांज़ैक्शन को ट्रैक कर पाओगे? ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है ना सर, राइट। आपके सामने। और ट्रांज़ैक्शन के लिए आपको फिर ये करना पड़ेगा, राइट?
यस, हर ट्रांजैक्शन को नहीं, जो अमाउंट होल्ड पे है, अच्छा जो बैंक होल्ड पे डालती है हमारे कंप्लेंट के बाद में, सिर्फ वो अमाउंट हम रिकवर कर सकते हैं। अच्छा बाकी जो चला गया उसको नहीं बाकी पॉसिबिलिटीज बहुत ओह, कम होती है सर, ए, बहुत, क्योंकि आप उसे ढूंढने जाओगे हाँ तब तक वो अ, पैसा विड्रॉ भी कर लिया होता है उसने, विड्रॉ करके कहीं पे इन्वेस्ट भी कर लिया होता है। और ये क्राइम रेट देखोगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट साइड हो रहा है, मतलब बंगाल, वो जो है पार्ट, वहाँ से ज़्यादा ये क्राइम रेट बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे सारे केसेस में वहाँ से ही कहीं ना कहीं से लिंक है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में एक स्पेशल टीम बनी है सर। ओके इट्स बिन ऑलमोस्ट 3 to 4 months। मैं जब गई थी तो मैंने इंटरेक्शन किया था ऑफिसर से, तो उस वक्त तो वो दिल्ली हॉक करके साइबर का एक ऑपरेशन चला रहे, उसमें दे अरेस्टेड मोर देन 1500 पीपल विद इन अ पीरियड ऑफ 45 days, और दे लॉन्च एफआईआर ऑलमोस्ट 50 to 60 अननोन लोगों के ऊपर। तो वहां पे कहीं ना कहीं पे कंट्रोल आ रहा है अभी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली इज अ वेरी बिग हब फॉर साइबर फ्रॉड एंड फॉर साइबर हैकिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो जाए, महाराष्ट्र में, मुंबई में, पुणे में, जो भी हमारे बड़े बड़े सिटीज है, तो कहीं ना कहीं पे फिर सर वो कंट्रोल में आ सकता है। अदरवाइज फिर इट्स अ वेरी बिग टास्क। ऑलरेडी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी सुमोटो कॉग्निजेंस लिया हुआ है, विच इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द एपेक्स कोर्ट। ये मैटर ऑलरेडी साइबर फ्रॉड का पेंडिंग है हाई सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने उसके रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस भी निकाली है सर। क्योंकि अब वो इमोशनली आपको ब्लैकमेल करते हैं, वो आपका सोशल प्रोफाइल देखते हैं, आप कैसा हो, आपका पूरा स्टडी करते हैं वो यस, स्टडी आप सोचो ना सर, हाँ मतलब आपके अकाउंट में आपकी लाइफ की पूरी जमा पूंजी पड़ी है, राइट और वो एक कॉल पे चली जाए। राइट और एक केस था, इनकम टैक्स ऑफिसर थे वो, उनकी लाइफ की पूरी जमा पूंजी चली गई सर, 88 लाख रुपीस जो उन्होंने पूरे सेव किए थे। तो ये टास्क है, बट राइट इम्पॉसिबल नहीं है, हाँ पॉसिबल है, कहीं ना कहीं पे इसे कंट्रोल हो सकता है। ये कंट्रोल होने जैसी चीज़ है, क्योंकि आज आप सोशल मीडिया देख रहे हो, सोशल मीडिया पे आप कोई ऐप डाउनलोड कर दो नया वाला, तो उसमें आपको टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट, तो आपका डेटा चला जाता है ना सर पूरा। हाँ हाँ राइट ऐसे कितने सारे आपके एप्लीकेशन में थर्ड पार्टीज आपके फ़ोन में थर्ड पार्टीज एप्लीकेशन है, तो डेटा वहीं से लीक होता है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, या फिर कुछ अननोन एक्टिविटी आपके फ़ोन में, जैसे कुछ लिंक आई आपके पास में, आपने क्लिक किया, आपको पता नहीं होता है, और लोग थोड़ा सा आपको देंगे, 500 रुपीज इन्वेस्ट करो आपको 10,000 मिलेगा, राइट तो वो भी एक जरिया है क्राइम बढ़ने का। या शॉर्ट मनी की वजह से जल्दी जल्दी कोई रिच करना चाहता है ना। रिच बनना है, उसके चक्कर में जो भी है वो भी चला गया। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे कि जो लोन करके पैसे डालते हैं, ओ माय गॉड लोन करके पैसे डालते हैं, एक्चुअली लोग तो उनको उनकी मेंटालिटी को टैकल हमें करना पड़ता है फिर, राइट कि उनको बिठाना, उनको समझाना, एंड इट्स अ वेरी बिग टास्क फॉर मी सर। आई थिंक पुणे में भी ऐसे एक केस हुआ था, खराड़ी में कहीं लोन लेके वो इन्वेस्ट कर रहा है, पता नहीं 50-60 लाख लोन ले लिया, फिर फाइनली और मंथली आई थिंक 80,000 ऐसे ही कुछ था ईएमआई, फाइनली वो दे नहीं पाया, सुसाइड की सुसाइड किया। ऑप्शन ही नहीं रहे अब वो मतलब इतने बड़ा बड़ा फ्रॉड आप कुछ भी नहीं कर सकते, 80,000 1 लाख मंथली कहाँ से लाओगे? हो सके आप इन्वेस्ट कर लो, आई थिंक 2 साल या 3 साल के बाद आपको 5 गुना मिल जाएगा। वो कैसे पॉसिबल है सर? अब वही वो सोचते हैं हाँ मुझे जब आप एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करते हो, राइट सपोज आपने ज्वाइन किया 1 लाख रुपीज सैलरी के ऊपर, आपको 12 लाख रुपीज का पैकेज है, आप जब उस कंपनी में 10 साल काम करते हो ना सर, तब वो 2 लाख पे जाता है। राइट इफ यू स्पेंड योर 10 years, हाँ मतलब विच इज अराउंड 5 to 10% ऑफ योर एंटायर लाइफ, राइट तब जाके आपका सैलरी 2 लाख रुपए होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? कोई मतलब लोगों को समझना चाहिए हाँ, राइट तो ये कब कम होगा? जब लीगल अवेयरनेस बढ़ेगा ना राइट कहीं ना कहीं पे, तो तभी शायद ये पॉसिबल है सर। राइट हाँ, तो आप लीगल अवेयरनेस कुछ करते हो, सेशंस वगैरह? यस सर, सेशंस तो करती हूँ मैं, और रिसेंटली मेरे एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एसोसिएट है, सुप्रीम कोर्ट के भी है, तो हमारा एक काउंसिल ऑफ लॉयर्स करके ग्रुप है, एनजीओ है ऑल ओवर इंडिया में। राइट तो हमारा एक विजन है उसमें कि मिनिमम जो हमारे मेंबर्स है, मिनिमम जो हमारे
जो भी एनजीओज में जुड़ेंगे लोग, तो वो कम से कम 200 आवर्स विलेज में स्पेंड करेंगे। Okay. 200 लीगल आवर्स। ओके, ग्रेट। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ हम पहुंचना चाहते हैं और मैं उसकी महाराष्ट्र स्टेट की सेक्रेटरी हूँ सर। ओके, ग्रेट। हाँ, तो अभी हम उसमें काम जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे और मेरी पर्सनल लेवल पे भी कुछ अभी आइडियाज़ है, उस पे मैं वर्कआउट कर रही हूँ। बट सारी चीज़ें एक टाइम पे इट्स अ वेरी है यार, पॉसिबल नहीं है। डिफिकल्ट, स्टेप बाय स्टेप आपको Step by जाना step. पड़ेगा, नहीं तो फिर ओवरलोडेड हो जाएगा ऑलरेडी आपका। क्योंकि ये ज़रूरी है सर। कहीं न कहीं पे मैं तो एज़ मेरी ज़िम्मेदारी मानती हूँ कि अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लीगल अवेयरनेस स्प्रेड करूँ। राइट, क्योंकि ये छोटे-छोटे मिस्टेक्स है। ओटीपी शेयर कर लिए, ये कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड कर, अगर वो कुछ कुछ नहीं करेंगे तो बस उधर ही खत्म हो गया आप। 100%। लेकिन वो उसके अंदर होता नहीं। और ये मैंने ना क्रिमिनल्स का देखा है सर, उनकी ना एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है सर। वो हमारे जैसे को टारगेट नहीं करेंगे सर। सीनियर सिटीजन्स को, रिटायर पर्सन को, जिनको लैक ऑफ नॉलेज हो सर, उनको वो नहीं, टारगेट आजकल करते हैं। सबको टारगेट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं भाई कहाँ से इनकम आ रहा है, जो भी इनकम नहीं, कर रहे उनका हैं। टारगेट करने का अलग-अलग वे है सर। राइट। जैसे हमारी जो कैटेगरी है, जैसे 20s टू 30s, फिर उनको टेलीग्राम से लिंक भेजेंगे। ओके। सोशल मीडिया से मतलब। और जो रिटायर्ड है, जो एजेड है, उनको डिजिटल अरेस्ट। तो उनका वो क्राइटेरिया है सर, ओके। क्राइम का ऐसे। वो सब फैक्टर एनालिसिस करते, एज ग्रुप क्या है, ये कहाँ रहता है, पूरा सोशल मीडिया प्रोफाइल मैं तो पूरा मानती हूँ कि सर अच्छे से करते हैं वो। मैं तो मानती हूँ कि जितना गवर्नमेंट एजेंसीज के पास डेटा नहीं होता है आपका, उतना उनके पास में होता है, उतना वो लोग उस डेटा में पीएचडी करके आ चुके होते हैं आपके बारे में। एक्चुअली वो गैंग जैसे अप्रोच करता है, उनका पूरा नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया है, पूरा माइन्यूट लेवल पे वो। वो कैसे कैसे वर्कआउट करते हैं ना, आई एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट। ओके। आप आप ए पर्सन हो, ओके। आपने बी को टारगेट किया। हाँ, हाँ। ए पर्सन नोज एवरीथिंग ऑफ बी। राइट। बी का सब पता है, हाँ, हाँ। सब माइनस पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, सब 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 पता है। आपका उसके पास आधार कार्ड है, आपका उसके पास पैन कार्ड है, सब पता है। आज आप पैन कार्ड लिंक करते हो, हर जगह पे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक है। अब वन टैप पे सब आपका डिटेल्स पता चल जाता है। आप यकीन नहीं मानोगे सर, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स वो ट्रांजैक्शंस होते हैं। एपीके आपके फोन में आ गया, आपका फोन का पूरा हैंडलिंग उसके पास चला गया। उनके पास में ना सर लेयर 10 तक अकाउंट्स होते हैं, लेयर 10 तक। अमाउंट फटाफट 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 कॉपी पेस्ट हो गया। तब तक तो आप सोचते रहते हो कि क्या करूँ, क्या करूँ? राइट, वो 1-2 मिनट के और अंदर। तब तक वो पैसे विथड्रॉ कर लेते हैं। राइट। ये डिफिकल्ट है बहुत, उन्हें ट्रैक करना। बट कुछ-कुछ केसेस में पॉसिबिलिटीज़ है, हमने किया भी है, ऐसा नहीं है। राइट। लेकिन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि एक बार चला गया तो पता नहीं वो कितना मिलेगा। अ, वी कैन नॉट, उसके लिए साल, पता नहीं कितना साल लगेगा वो भी नहीं बोल सकते हैं। तो लॉ पर्सपेक्टिव से हमने कुछ मिस किए हैं क्या, और आप कुछ बोलना चाहते हो? कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मैसेज देना चाहते हो व्यूअर्स या? हुँ, मैं तो बस एक ही मैसेज देना चाहती हूँ बीइंग एज़ अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, ओके। लॉ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। फर्स्ट जनरेशन के लिए तो बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत ब्यूटीफुल है। आपको एक आपका एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हो। अगर आपने कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क के साथ में काम किया तो। बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, तो दे ऑलवेज़ यूज्ड टू आस्क मी कि मैम हमें बताइए, आपने कैसे अचीव किया? हमें बताइए कि आपकी अचीवमेंट कैसी थी, आपकी जर्नी कैसी थी? लाइफ में कुछ भी आसान नहीं है सर, राइट। डिफ़िकल्ट है सारी चीज़ें, बट इम्पॉसिबल नहीं है सर। हाँ, अगर आपके पास एक अच्छा मेंटर होगा, वो मेंटर भी आपके ऊपर है कि आप कैसे चूज़ करोगे अब, राइट। है ना? अगर आपके पास एक अच्छा मेंटर रहेगा, आप उसे सरेंडर करिए सर। आप यू डोंट एक्सपेक्ट, 1 साल तो कुछ एक्सपेक्ट मत करिए सर लॉ से। आप बस आपका डेडिकेशन, पैशन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, इस चीज़ पे फ़ोकस करेंगे ना, तो आपका प्रैक्टिस 100% फ्लोरिश होगा सर। और उसी पे शायद मैंने काम किया है। उसी की वजह से आपके सामने बैठी हूँ, बिकॉज़ अदरवाइज़ मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं कि जो 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, 10 साल से कोर्ट में, बट उनके पास में वो काम नहीं आता है। राइट। तो
आपके नेटवर्किंग पे भी डिपेंड है। अगर आपके पास अच्छा सोशल मीडिया है तो फिर सोशल मीडिया का भी आप यूज़ कर सकते हो लीगल अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, कैंपेनिंग करने के लिए। तो काम बढ़ते जाता है, काम कम नहीं होता है। अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करोगे तो फिर 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि सक्सेसफुल लोगों ने वही किया है ना सर। मैंने जिन-जिन लोगों को पढ़ा है, जिन-जिन लोगों की बायोग्राफीज़ ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ी है, तो उन्होंने वही वही उसी पे फ़ोकस किया हुआ है। कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पैशन, दैट्स इट। आप जिस काम से प्यार करते हो ना, उस काम में आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाता है सर। सिर्फ डेडिकेशन से करना चाहिए। फिर जैसे यंग लॉयर्स है, तो उनको अपडेट रहना चाहिए। लोगों को पढ़ना पसंद नहीं है, पढ़ना पसंद करो, ऑटोमेटिकली आपका काम ग्रो करेगा। आप डेली एक जजमेंट पढ़िए। डेली तो पढ़ना इम्पॉसिबल है। मैं तो मेरे एसोसिएट्स को बोलती हूँ कि डेली मत पढ़िए, बट वीक में 1 जजमेंट पढ़िए। मंथली आप 4 जजमेंट पढ़ोगे और ईयर में आप 50 टू मोर देन 60 जजमेंट पढ़ोगे ना। मतलब सोचो ना, आप 50-60 सब्जेक्ट में आप परफेक्ट हो जाओगे, अगर आप 50 जजमेंट भी पढ़ते हो तो। ये तो मैंने वास्ट बताया एकदम, बट आप 50 से 100 भी जा सकते हो सर। हाँ, क्योंकि एक सेक्शन में भी आपको करियर करना है तो भी आप लॉ में कर सकते हो। 2 सेक्शन में, सेक्शन सिर्फ सेक्शन की बात कर रही हूँ, सब्जेक्ट की भी नहीं। हाँ, क्योंकि उस सेक्शन पे कितने सारे बुक्स है, कितने सारे ऑथर्स ने उसके ऊपर लिखा है, कितने सारे सोचो ना, मतलब लास्ट 50 ईयर से 60 ईयर से उसके ऊपर कमेंटरीज है, उसके ऊपर जजमेंट्स है, एक सेक्शन के ऊपर। तो लॉ कितना ब्यूटीफुल है। राइट। एक्चुअली जिसमें पैशन होगा वो ही उसको संभाल पाएगा, नहीं तो बहुत अदरवाइज डिफिकल्ट है। वेरी टफ, वेरी क्योंकि इतने सारे आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही नॉर्मल आदमी के लिए डिफिकल्ट है। हाँ, अंदर नॉर्मल आदमी के लिए डिफिकल्ट है ही सर, क्योंकि फिर वहाँ पे वैसा है, आपको अच्छा इन्वायरमेंट भी मिलना चाहिए, अच्छे लोग मिलने चाहिए आपके आसपास, तभी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। आपको मोटिवेट करने वाले लोग चाहिए, आपको पुश करने वाले लोग चाहिए। Okay, I think we'll conclude the session. So thanks Pooja for coming to my podcast, and I am delighted to host you as a guest, and we learned lots of new things today. 100%. Thank you. Thank you for inviting me. It was a very great time with you and your team.